Good morning, children. Today we have to start the very important chapter that is called the electrochemistry of your 12th chemistry, part first NCERT book. Children, it's a very important chapter, okay? And in this chapter, what we are going to study, we are basically see the electrochemistry is basically the study of the production of electricity from energy released during the spontaneous chemical reactions. बच्चों व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस में जो अपने आप हो जाए ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद से स्वतः सेल्फ हो जाए, ठीक है, विदाउट एनी पुश, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो बेसिकली the chemical reactions they can be used to produce the electrical energy. Okay, and electrical energy can be used to carry out the chemical reactions that do not proceed the spontaneously. So बच्चों in this unit, that is the unit 3rd, we are going to describe the electrochemical cell and difference between the galvanic and electrolytic cell. We'll also study about the Nernst equation, which is very important. Okay, we'll calculate the EMF of the galvanic cell. We'll define the standard potential. Okay, we also derive the relation between the standard potential of the cell gives energy of the cell reaction and its equilibrium constant. Okay, we'll know some terms such as the resistivity, conductivity, molar conductivity of the ionic solutions. We'll also discuss about the differentiation between the ionic and electronic conductivity. We'll also describe the method for measurement of conductivity of electrolytic solutions and also solve the numericals of the molar conductivity. We'll justify the variation of conductivity and molar conductivity of solution. इस चैप्टर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं बच्चे, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट खोलरश लॉ है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, खोलरश लॉ देखेंगे, ठीक है. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू स्टडी. विल स्टडी अबाउट द सेकेंडरी बैटरीज, प्राइमरी and secondary battery, fuel cells. Will explain the corrosion as an electrochemical process. So these are basically the things, okay, the subtopics which you have to cover in this unit. ठीक है बच्चों. I have told you that the electrochemistry is the study of the production of electricity, you got it, from energy released during the spontaneous chemical reaction and the use of that electrical energy to bring out the non-spontaneous chemical transformations. ठीक है, तो बच्चों बेसिकली यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, कि हम केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इसका जस्ट अपोजिट भी है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शंस को भी क्या करते हैं, एक्सेस करवाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही जो है इसके इम्पॉर्टेंस है. बहुत सारे मेटल्स हैं, सोडियम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ओके, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हमने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है. बैटरीज हो गए, फ्यूल सेल्स हो गए, क्या करते हैं इसमें बेसिकली आपको पता है कंसेप्ट बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स का. इसमें क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो आपकी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, और बहुत ही लार्ज स्केल्स पे इनका यूज़ होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस बनाने में, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि जो भी रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिकली कैरिड आउट की जाती हैं, ठीक है, वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ओके, एंड दे आर लेस पोल्यूटिंग. इसलिए बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हमारे आज की जो न्यू टेक्नोलॉजी है बहुत ही इको फ्रेंडली भी, ठीक है. आपको पता है द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू द सेल्स टू ब्रेन एंड द वाइस वर्सा एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स आर नोन टू हैव द इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन. इसमें भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन है, जो ट्रांसमिशन होता है नर्व्स के थ्रू, जो सेंसरी सिग्नल्स का आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, ठीक है. सो बच्चों इट इज़ अ वेरी वास्ट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. And in this unit, we'll cover out some important elementary aspects of this chapter. ठीक है बच्चों, तो ये था इंट्रोडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोग को देखने हैं, वो मैंने डिस्कस कर दी. हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. बच्चों आपने क्लास 11th में डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था, है ना, और मैंने आप वहाँ पे बताया भी था, ठीक है, कि ये सेल ऐसी सेल है जो केमिकल एनर्जी को, ठीक है, कन्वर्ट करती है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है. या देखो यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स यू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर. ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है. अगर आप यहाँ पे देखें तो जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन,
और कॉपर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो बच्चों ऐसे सेल्स विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, एंड हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट। ऐसा कब होगा, जब जो कंसंट्रेशन है जिंक 2+ कॉपर आयंस का, यानी जिंक और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर होना चाहिए पर डेकामीटर। और ऐसे डिवाइसेस को हम लोग गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन दिया गया है डेनियल सेल का, जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो उनके खुद के सॉल्यूशंस में डिप्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया गया है, इधर से करंट का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बच्चों हमेशा जिंक से लेकर के कॉपर की तरफ होता है, ठीक है। और जो करंट का फ्लो है, द पॉजिटिव नेगेटिव, जो कन्वेंशंस आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बच्चों इस जो डेनियल सेल है, जिसका जो है आप देख सकते हो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है 1.1 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर हम एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करें गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, और धीरे धीरे इसको स्लोली इंक्रीज करें, तो हम क्या देखेंगे, विल फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेस द वैल्यू ऑफ 1.1 वोल्ट। हम देखेंगे कि रिएक्शन जो है क्या होगी, वो होगी, है ना। और कब तक होगी, जब तक आपका ये जो अपोजिंग वोल्टेज है जो हम लगा रहे हैं वो 1.1 वोल्ट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज द फिगर 3.2 वोल्ट, यहाँ पे देखिए इसमें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि ये जब व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर, यानी जब पूरी तरह की रिएक्शन रुक जाएगी और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा सेल में, कोई भी सेल इस कंडीशन में, ठीक है, जब वो 21 के इक्वल हो जाएगा। एंड एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर हम उसके बाद भी अगर इंक्रीज करेंगे एक्सटर्नल पोटेंशियल को, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेसिकली क्या होगा, है ना। मैंने यही बताया कि जब ये आप जो एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लगाएंगे, आपको पता है उसका पोटेंशियल जो है डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट है, ठीक है। और हमने अब क्या किया, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लगाया, ठीक है, गैल्वेनिक सेल पे, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस, कब तक, जब तक जो अपोजिंग वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट तक ना रीच हो जाए। जैसे ही वो 1.1 वोल्ट पे रीच होगा, उस पोजीशन इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आपकी रिएक्शन रुक जाएगी और कोई करंट फ्लो नहीं होगी पूरे सेल में। और फिर उसके बाद भी अगर हम इंक्रीज करेंगे एक्सटर्नल पोटेंशियल को, तो क्या हो जाएगा, द रिएक्शन अगेन स्टार्ट, बट अब अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। और अब इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, ओके, इट इज यूज्ड फॉर to change what, using the electrical energy to carry out the non spontaneous chemical reaction होते हैं जो अपने आप से नहीं होते, उनको पुश की ज़रूरत होती है। समझ में आया। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है, इट इज़ अ डिवाइस फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट द व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एंड दिस बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड वी शैल स्टडी सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो चीज़ हमने डिस्कस की यहाँ पे पिक्टोग्राफिकली दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं जब तक आपका ई एक्सटर्नल, ठीक है, वो 1.A वाले में देखो, आपका अगर कम था, when E external is less than 1.1 volt, what will happen, the electron flow from zinc rod to the copper rod, hence the current flows from copper to zinc, एंड सेकेंड और क्या होगा, इसमें जो जिंक होगा वो आपका एनोड में क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा, और कॉपर डिजोल्व होगा कैथोड पे, डिपॉजिट होगा, ठीक। अब बी वाले केस में देखो, यहाँ पे क्या है, आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है जब वो 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था करंट रुक जाएगी, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, ना ही करंट का फ्लो होगा, और वहाँ इस समय कोई केमिकल रिएक्शंस आपकी नहीं होगी। अब देखिए हमने फर्दर उसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 1.1 वोल्ट से भी हमने ज़्यादा उसको बढ़ा दिया, तो अब उस समय क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मीन्स द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है। और आपको बताऊं यहाँ पे और क्या होगा कि जो जिंक होगा, इट इज डिपॉजिट एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड, जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। जब आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट से कम था, तो जिंक डिजॉल्व हो रहा था एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट हो रहा था कैथोड पे। लेकिन यहाँ जब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, 1.1 एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, तो यहाँ क्या हुआ,
जिंक डिपॉजिट हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रो जो आपका सेल है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर इसको डिस्कस करते हैं। पहले आता हम लोग गैल्वेनिक सेल पे, ठीक है बच्चों। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो क्या करता है, आपकी जो केमिकल एनर्जी है ना, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आपका गैल्वेनिक सेल है। ओके, means a galvanic cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy। और आपको पता है इस डिवाइस में जो गिब्स एनर्जी होता है ना, in this device the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work, ठीक है। और इसी जब वो उसको कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क में, तो क्या उसका यूज़ हम कर सकते हैं जैसे मोटर को रन करने में, या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर हो गया, फ़ैन हो गया, गीज़र हो गया, इन सबको रन करने में भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। और डेनियल सेल जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है, उसको मैंने अभी बताया, उसकी रिडॉक्स रिएक्शन कुछ इस टाइप से दी गई, ये देख सकते हो आप, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव्स यू जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड, है ना। और ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने बताया कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है ना। तो जो आपका देख सकते हो कि कॉपर मैंने बताया यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना, कॉपर 2 प्लस गिव्स यू कॉपर सॉलिड, मीन्स here what's happened, the first reaction 3.2 it is a reduction, so that's why we call it the reduction half reaction. In the second one, that is zinc solid changes to zinc ion plus 2 electron, समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने दे दिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, गॉट इट, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, अब दिख रहा है, तो यहाँ इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, है ना। और ये आपको बताऊँ, ये दोनों रिएक्शन बच्चों, ठीक है, आपके डेनियल सेल के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में होते हैं। जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ना, यानी 3.2 जो भी हमने देखा, ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इट अकर्स ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, वाइल जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है वो जिंक इलेक्ट्रोड पे होती है। और आपको पता है ये जो दोनों पोर्शन है सेल के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग बोलेंगे, हाफ सेल्स या रिडॉक्स कपल्स। यस, दीज टू पोर्शन ऑफ द सेल आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, हाफ सेल्स और रिडॉक्स कपल्स। आपको पता है ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल या जिंक इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, ओ सॉरी, द कॉपर इलेक्ट्रोड को हम लोग जो होता है इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, और जिंक इलेक्ट्रोड को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नेम्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, ठीक है। बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस पैटर्न पे, ठीक है, डेनियल सेल के पैटर्न पे, ठीक है। जब हम दो कॉम्बिनेशन लेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल्स के, तो हमारे इस पैटर्न पे, इस डेनियल सेल के पैटर्न पे हम बहुत सारे गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इट्स इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एंड दीज टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय ए मेटेलिक वायर। अभी हम क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो जो हाफ सेल है दिस कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगा, और ये दोनों हाफ सेल्स होंगे दे आर कनेक्टेड बाय ए मेटेलिक वायर, गॉट इट, थ्रू किससे कनेक्ट होंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है, और इसमें एक स्विच भी लगा होगा एक्सटर्नली। और आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये दोनों हाफ सेल्स के, ये बीच में क्या होगा, एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होंगे, यस दे आर कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज, बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो and sometime both the electrode dip in the same electrolyte solution and in such cases we do not require, अगर आपका दोनों साइड दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सेम है तो हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको बता दूंगा बाद में क्या होता है, कैसे क्या यूज़ है सॉल्ट ब्रिज का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है हर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट जो इंटरफेस है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, है ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक एक सेल की अगर एक एक डिफरेंट जो हाफ सेल्स उनकी बात करें, तो हर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट जो इंटरफेस है, ठीक है, उन सबके पास ये टेंडेंसी होती है, दे हैव द टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिव चार्ज, और इस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होने में हेल्प करते हैं।
उसी समय क्या होता है, जो मेटल एटम्स होते हैं इलेक्ट्रोड के, दे हैव द टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन, यानी मेटल एटम जो होंगे इलेक्ट्रोड के, वो सॉल्यूशन में जाने की भी टेंडेंसी है ना, एज आयंस, एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन एट द इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज, यानी एक तरफ आपका पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो रहा है वहाँ पे क्या है, कुछ मेटल आयंस हैं जिनके पास टेंडेंसी है वो सॉल्यूशन से डिपॉजिट होते हैं मेटल इलेक्ट्रोड पे, और जब मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे, आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी समय दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, जो मेटल एटम है इलेक्ट्रोड के, वो उसके पास टेंडेंसी कि वो सॉल्यूशन में चला जाए, यानी इधर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू अपोजिट रिएक्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली तो इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एक डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझ में आ रहा है। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल इज यूनिटी, ठीक है, अगर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल इज यूनिटी, तो क्या होगा, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी जब क्या होगा कि जब सारे स्पीशीज का, ठीक है, जितने भी हाफ सेल में इन्वॉल्व हैं उनका सबका कंसंट्रेशन अगर हम यूनिटी 1 ले लें तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों, आगे बहुत यूज होंगे, इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसको पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता था, अब हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और इन अ गैल्वेनिक सेल की बात करें तो जो हाफ सेल होता है इन विच जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, अगर हम एक गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वहाँ पे वो हाफ सेल, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। रिमेंबर, उसको क्या बोलेंगे हम, एनोड बोलेंगे, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, बोलो जिंक का हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में था, वो एनोड था। और आपको बताऊं जो एनोड होगा उसका क्या होगा, उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एक बार फिर से देख लो। अकॉर्डिंग टू द IUPAC कन्वेंशन, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था उसको आजकल हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, वो हाफ सेल जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, और उसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। जबकि दूसरे एंड में क्या है, ऐसा हाफ सेल जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, ठीक है, और उसका क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, thus there exists a what, potential difference between the two electrodes, and as soon as the switch is in the on position, what will happen, the electron flows from negative electrode to positive electrode, और इस तरीके से आपका जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होगा इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो समझ में आ रहा है, ये बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट है, ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया इसका यूज़ अभी आगे होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब आगे देखो। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैल्वेनिक सेल में, इसको हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों, इन टर्म्स को अच्छे से आप लिख करके याद कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द व्हाट, सेल पोटेंशियल। और इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, वोल्ट्स में, एंड विल मेजर्ड इन वोल्ट्स। So the cell potential is what? It is the difference between the electrode potentials, यानी reduction potential of the cathode and anode. Simple, ठीक है। cell potential क्या होता है? cell potential is the difference between the electrode potentials of cathode and anode. यानी cathode और anode के जो electrode potential का जो difference होता है ना, उसी को हम लोग cell potential बोलते हैं, है ना। and it is कॉल द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी EMF भी बोलते, ठीक है। कब,
जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही होगी सेल, मीन्स इट इज कॉल्ड द, इसी को हम लोग सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे सेल का, कब, जब व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, ठीक है। इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। और आपको पता है इट इज नाउ हैड बीन एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट साइड। ये ध्यान रखना, जब भी हम एक जो है क्रिएट करते हैं गैल्वेनिक सेल, तो क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोड रखते हैं हमेशा, और राइट हैंड साइड में हम कैथोड रखते हैं जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे गैल्वेनिक सेल को, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको रिटन फॉर्म में, अ गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, यानी मेटल और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके बीच में सिंगल लाइन, एक सिंगल वर्टिकल लाइन रखते हैं, ठीक है। और डबल वर्टिकल लाइन कब रखेंगे, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, जो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, उनके बीच में हम दो वर्टिकल लाइन रखेंगे, और मेटल और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में हम सिंगल वर्टिकल लाइन रखेंगे। ये कन्वेंशन लिखते समय, ठीक है। सो एंड अंडर दिस कन्वेंशन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज क्या होता है, पॉजिटिव। इस कन्वेंशन में क्या होता है, जो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल इस समय पॉजिटिव होता है, और कैसे निकालेंगे, यानी राइट हैंड साइड का जो आपका हाफ सेल का पोटेंशियल है उससे माइनस करके किसको, लेफ्ट हैंड साइड वाले के हाफ सेल के पोटेंशियल को। यानी आप देख सकते हैं ई सेल कैसे निकलेगा, आपका ई सेल क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई राइट। ई राइट का मतलब क्या, पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दिया गया है, जो अभी हमने यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट, नो सॉरी, कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू Cu2 प्लस प्लस 2Ag। यहाँ पे ये रिएक्शन है। अगर इसको हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है ये। तो यहाँ देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, 2Ag प्लस आपके Ag सॉलिड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके कैथोड पे हो रही है, मैंने बताया भी था, ठीक है, कि रिडक्शन आपका कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो कैथोड के रिएक्शन में लिखा है 2Ag प्लस प्लस 2E गिव यू 2Ag, एंड एनोड इज गिवन ऑक्सीडेशन कॉपर प्लस Cu2 प्लस प्लस 2E। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ओवरऑल रिएक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 3.5 और 3.6 दोनों हाफ रिएक्शन से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसको हम कैसे, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, देखो यहाँ देखिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्या, कॉपर सॉलिड और कॉपर आयन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हमने एक सिंगल वर्टिकल लाइन रखी है, और देखिए कॉपर आयन और Ag आयन दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके बीच में हमने डबल वर्टिकल लाइन रखी है, और फिर से Ag और Ags के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन रखी है। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाया आपको गैल्वेनिक सेल का। और ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट, राइट में क्या है ना, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, ई Ag प्लस सिंगल वर्टिकल का Ag माइनस ई Cu प्लस 2 प्लस सिंगल लाइन Cu। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब आते हैं कैसे मेजरमेंट करेंगे आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अच्छे से समझ लो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों देखो हाफ सेल, अगर इंडिविजुअल हाफ सेल की बात करें तो उसका पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली मेजर द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल्स। यू गॉट माय पॉइंट, क्या है कि वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल्स,
हम अगर चाहें सिर्फ इंडिविजुअल हाफ सेल का ये पोटेंशियल मेज़र करना नहीं कर पाएंगे। हम कर क्या सकते हैं, दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल के जो डिफरेंस है उसी को मेज़र कर सकते हैं, और यही हमको ईएमएफ देता है सेल का। ठीक है, तो हम खुद से डिफ़ॉल्ट जो है आर्बिट्रली चूज़ कर लेते हैं पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल का। ठीक है, देन डेट ऑफ द अदर एंड इट कैन बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट। एक को हम चूज़ कर लेंगे और दूसरे से क्या करें, उसको कंपेयर करके निकाल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन यूज दो कि जो हाफ सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द हाफ सेल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि अगर हम आर्बिट्री चूज कर लें पोटेंशियल को, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल को, एंड देन दैट ऑफ द अदर कैन बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू, दूसरे को हम उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन क्या है कि जो हाफ सेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अ हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। And it is represented by platinum solid single vertical line hydrogen gaseous and single hydrogen H plus aqueous। और इसी को हमने क्या जीरो पोटेंशियल असाइन कर दिया है सारे टेम्परेचर पे कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल द रिएक्शन। यानी इसको हमने आर्बिट्रली चूज कर लिया। ठीक है, इसकी यहाँ पे रिएक्शन भी दी गई है, H aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन जो हाफ हाइड्रोजन। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ देख सकते हैं पूरा यहाँ पे अपैरेटस दिया गया है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और जो आपका अब मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो हाफ सेल होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विच इज़ कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को हम डिप कर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, और एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट, और हम प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो उससे होता क्या है, जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। यानी दोनों को हम वन रखते हैं। किसको, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म है हाइड्रोजन के उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी रखते हैं। इससे क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार। इससे ये पता चल रहा है कि जो प्रेशर होगा हाइड्रोजन गैस का वो 1 बार होगा। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन में वो भी क्या होगा, 1 मोलर। दैट विल ऑल्सो बी व्हाट, इट विल बी 1 मोलर बेसिकली। गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर इस टेम्परेचर पे हम बात करें तो जो ईएमएफ होता है सेल का, ठीक है, मीन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और डबल लाइन स्टैंडर्ड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड एंड अदर हाफ सेल जो है वो कैथोड होगा। ठीक है, इट गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो ईएमएफ होता है इस टेम्परेचर पे, ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा और सेकेंड जो हाफ सेल है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो बच्चों, जैसे टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जो ईएमएफ होगा सेल का, ठीक है, यानी ये बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या है, सेकंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड, यानी जो रेफरेंस हाफ सेल है, और दूसरा जो अदर हाफ सेल एज अ कैथोड, ये क्या देगा, इट गिव्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अदर हाफ सेल, है ना। सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीशीज इन द राइट हैंड हाफ सेल आर यूनिटी। ठीक है, अगर कह रहा है कि आप जो है जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म हाइड्रोजन की, ठीक है, वो जो राइट हैंड साइड में है उसको अगर यूनिटी 1 मान लें तो क्या होगा, जो सेल पोटेंशियल होगा इट इज़ इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी तो कैसे निकलेगा आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बाय ई राइट माइनस ई एल। यहाँ पे ई एल क्या है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, और आर क्या है, राइट हैंड साइड का है ना। और जो ई एल है जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो 0। ठीक है, तो जब ई एल हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ई आर माइनस 0 यानी ई आर का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेजर्ड ईएमएफ होता है सेल का, तो उसको इस तरीके से हम देखिए दिखा सकते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो जो मेजर्ड है
यानी अगर हम जब निकालते हैं तो जो मेजर्ड ईएमएफ आता है सेल का वो 0.34 वोल्ट आता है, और यही वैल्यू है एंड इट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रिएक्शन। हाँ देख सकते हो Cu2 प्लस 2E इज इक्वल टू, यानी इस जो हाफ रिएक्शन है ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। सिमिलरली जो मेजर्ड ईएमएफ है इस सेल का, ये नीचे जो दिया गया है, ठीक है, दोनों का अलग अलग, उसका मेजर्ड ईएमएफ कितना है 0.34 वोल्ट, इसका जो मेजर्ड ईएमएफ आया है वो कितना आया है -0.76, ठीक है। और ये क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस वाली हाफ रिएक्शन का है, Zn + 2 इज इक्वल टू Z। तो यहाँ पे जो बच्चों पॉजिटिव वैल्यू है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फर्स्ट केस में, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कॉपर आयंस हैं दे गेट रिड्यूस मोर इजली देन हाइड्रोजन आयंस। ध्यान रखना, पॉजिटिव वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग उस पर आ गए हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, या जो फर्स्ट केस में आई यानी 0.34 वोल्ट, वो हमें ये बता रही है इट इंडिकेट दैट कॉपर आयन गेट्स रिड्यूस मोर इजली देन हाइड्रोजन आयंस। समझ में आ रहा है, यानी अगर किसी भी केस में अगर आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन आयन, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज द हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, you got the point, the hydrogen ion cannot oxidize the copper, या अल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं that hydrogen gas can reduce the copper ion, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता कॉपर को, समझ में आ रहा है, लेकिन लेकिन हाइड्रोजन गैस वो कॉपर को रिड्यूस जरूर कर सकती है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉपर होता है इट डज नॉट डिजॉल्व इन HCl, यानी तो क्या होगा, कॉपर आपका डिजॉल्व नहीं होगा HCl, समझ में आ रहा है। तो अब देखो नाइट्रिक एसिड में क्या है बेटा, इन नाइट्रिक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रिक एसिड में वो किसके द्वारा ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रेट आयन के द्वारा, और हाइड्रोजन आयन उसको नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि जो नेगेटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सेकंड केस में वो हमें ये बताती है कि हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो होगी तो उसका यही मतलब होता है बच्चों। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आ रहा है लेफ्ट इलेक्ट्रोड और डेनियल सेल के हम लोग राइट इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पे लिखा है, और ओवरऑल रिएक्शंस को भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम, ठीक है, ईएमएफ निकालेंगे तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ER - EL, एंड इट विल बी, जब देखेंगे तो कितना आएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों समटाइम क्या होता है ना, कुछ मेटल्स आते हैं तो प्लैटिनम या गोल्ड जो होते हैं ना, दे आर यूज्ड एज द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मीन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में, बट दे प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन में भी। फॉर एग्जाम्पल जो प्लेटिनम है, ठीक है, ये जो हाफ सेल्स में प्लेटिनम किस लिए यूज़ हो रहा था, ये बेसिकली न्यूट्रल टाइप का है ना। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का यूज़ है विद हाफ सेल, और ब्रोमाइन इलेक्ट्रोड का भी यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से रिएक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लास्ट में हम आ जाते हैं, ठीक है, कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है कंक्लूड पैराग्राफ है ना बच्चों। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या कि जो वैल्यूज़ होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, फॉर सम सेलेक्टेड हाफ, उसको दिया भी गया आपके नीचे टेबल में, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब सोचो, देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का वो 0 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस। फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका नेगेटिव है तो क्या होगा, देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन रिड्यूस फॉर्म ऑफ दैट स्पीशीज। समझ में आ रहा है। तो इट कैन बी सीन दैट जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है फ्लोरीन का, ठीक है, वो मैक्सिमम यानी हाईएस्ट है टेबल में। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट दैट फ्लोरीन गैस हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टू फ्लोरीन आयंस।
है ना। यानी अगर फ्लोरीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी फ्लोरीन गैस है इट हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टू फ्लोराइड आयंस एंड देयरफॉर द फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है। और जो फ्लोराइड आयन है यानी जो फ्लोरीन गैस है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो फ्लोराइड आयन है, ध्यान रखना, फ्लोरीन गैस और फ्लोराइड आयन अलग अलग बोल रहा हूँ। यानी फ्लोरीन गैस जो क्या था वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो फ्लोराइड आयन है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया। इसी प्रकार से लिथियम जो है उसका लोएस्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while lithium metal is the most powerful reducing agent in the aqueous solution। ठीक है बच्चों, तो ये इस टेबल से बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, और आप देखेंगे इस टेबल में तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम है। और इस डिक्रीज के साथ क्या हो रहा है, विद दिस इट डिक्रीजेज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज। यानी जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी स्पीशीज की क्या होगी, घटेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अभी टेबल में आप देखेंगे एंड इट इंक्रीजेज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है डिक्रीजेज एंड विद दिस क्या होगा, डिक्रीजेज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट एंड it increases the reducing power of the species on the right hand side of the reaction। और आपको पता है ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इवन हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स भी इससे निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। तो ये बच्चों एक कंक्लूडेड पैराग्राफ था, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इट्स इज होमवर्क फॉर यू, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वो टेबल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो भी हमने ऊपर डिस्कस की। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन का देखिए ऊपर सबसे ज़्यादा है 2.87। ठीक है, और इस टेबल में दिखाया गया कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, है ना। ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे दिया भी है। ठीक है, अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन दैट द रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन दिस हाइड्रोजन कपल्स। और पॉजिटिव ईएमएफ का मतलब है कि द रेडॉक्स कपल होगा वो क्या होगा, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस कपल हाइड्रोजन कपल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों। ठीक है, इन होमवर्क दिस इज योर द इंटेक्स्ट क्वेश्चन, दिस यू हैव टू गो थ्रू। ओके, इजी है, एक दो बार इस वीडियोस को देखो, अच्छे से कंसेप्ट को समझो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट इक्वेशन, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।